A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our literature portion, that is Indigo. Here Indigo is a excerpt which I just taken out from the very huge book, that is the name of that particular book is The Life of Mahatma Gandhi. And here indigo refers to a plant which usually used to make the you can say blue color, especially जैसे हमने नील बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. सो हियर इंडिको has been written by Lewis Fisher. Here, Lewis Fisher, who just got born in 1896 and he got died in 1970. He was born in Philadelphia. So, where he has got born, got born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British, you can say, army between 1918 and 1920. It was a time period of end of the First World War. So here Fisher made a career as a journalist. He was also a journalist, a writer, as well as a volunteer in the British Army. So, and he wrote for the New York Times, that was a newspaper. Saturday Reviews is also the newspaper, and for Europe and Asian publication. So he was just used to write for the newspaper and the magazines of Europe and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. He was also a faculty belong to the university named Princeton. So the following is excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Here, one of the renowned you can say book authorities, you can say institution, that is Times Educational Supplement, has just declared it as one of the best book ever written on Gandhi, which has just given written by Louis Fisher. So let's get started with our lesson here. But before starting this, we have to notice these expressions in the text. These are the expressions, and they we have to get out the meanings of this word out of the context. Now let us think. Here, when I first visited Gandhi in 1942, our, you can say, our writer Louis here says that when I got you can say chance to first visit Mahatma Gandhi in 1942 at the ashram in Sevagram in central India, right? Then he said that I will tell you how I happened and that I decided to urge the departure of British in, it was in 1917. So यहाँ पे लुइस फिशर जो हैं वो महात्मा गांधी से 1942 में 1942 में मिलने गए थे. कहाँ पे? उनके आश्रम में, सेवाग्राम में, सेंट्रल इंडिया में. तो वो वहाँ पर जाके कहते हैं कि मुझे महात्मा गांधी ने बताया कि नाउ आई विल टेल यू, यानी कि बुक के बीच का ही एक एक्सेप्ट है. तो पहले की बात है, यानी कि उनके बीच में कुछ बातें चल रही होंगी कि वो बुक लिखना चाहते हैं, तो उनके जीवनी के बारे में एक चीज़ें करके बताइए. तो अब जो महात्मा गांधी बता रहे हैं वो है कि उन्होंने किस तरीके से 1917 में ब्रिटिशर्स को उसके डिपार्चर के लिए डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें यहाँ से, यानी कि ब्रिटिश लोगों को यहाँ से साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा. ये किस तरीके से महात्मा गांधी डिसाइड किया, लेट्स सी. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब यहाँ पे दिसंबर 1906 के 1916 की बात की जा रही है, जब महात्मा गांधी कहाँ गए थे. एनुअल कन्वेंशन यानी एक प्रोग्राम था नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी का, लखनऊ में, वहाँ गए थे. देयर वॉज 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, ऐसे बहुत सारे प्रतिभागी आए थे जिनकी संख्या 2301 थे, जो खुद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर यू कैन से लेकर आए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड. जब वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, पूरा फंक्शन चल रहा था, एट दैट टाइम गांधी जी अपनी पिछली चीज़ों को याद करते हैं और उनको बताते हैं, यानी कि वो अपने ही जिस यानी कि जीवनी के बारे में बता रहे हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लिए, उन्हीं में आगे वो बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ गया, लखनऊ गया, तो वहाँ की उस पार्टी की कन्वेंशन में मुझे एक पीजेंट, यानी कि एक गरीब तबके का जो क्या बोलते, किसान, राइट, किसान केम अप टू मी लुकिंग लाइक अनदर पीजेंट इन इंडिया. तो जो किसान था वो उसको बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है
जैसा कि अदर जो किसान होते हैं इंडिया के, पुअर और इमेंसिनेटेड। सो यहाँ पे जो वो काफ़ी गरीब दिख रहा था, काफ़ी पुअर दिख रहा था। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। उसने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया कि वो उसका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण, वो कहता है कि मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्टेड यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और तुम्हें सॉरी आपको मेरी डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में आना पड़ेगा। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लेस, इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। राइट, तो कभी भी उनका नाम नहीं, चंपारण का नाम नहीं सुना था गांधी जी ने, बिकॉज वो ऐसे तलहटी में बसा हुआ एक गांव था जहाँ पर नेपाल का किंगडम शुरू हो जाता है, नियर हिमालय। सो अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स। अब यहाँ वो क्यों आया था उनसे मदद मांगने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि वो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट कि वो उनके राज्य में आए। वो इसलिए क्योंकि वो ये चाहता था कि जो उनके वहाँ पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी कि अपने ज़मीन की हिस्सेदारी ब्रिटिश लोगों को दे रहे थे, जिस पे वो नील उगा रहे थे, इंडिगो उगा रहे थे, और उसका आधा हिस्सा उनको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था। सो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम, उनमें से जो राजकुमार शुक्ला हैं वो भी एक थे। वो इलिटरेट थे बट रेजोल्यूट थे, काफ़ी दृढ़ थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody has probably said speak to Gandhi। वो वहाँ इस कन्वेंशन में यानी कांग्रेस सेशन में वहाँ की कंप्लेन लेकर जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, वो अन्याय क्या हो रहा था ये हम इस थ्रू आउट द चैप्टर में पता लगाएंगे। दैट लैंडलॉर्ड जो थे बिहार में, वो पुअर जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनका शोषण कर रहे थे। एंड समबडी, किसी ने कहा कि आपको गांधी जी से बात कर लेनी चाहिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन द कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। वो कहते हैं अभी मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और ऐसे ही बहुत सारी कमिटमेंट हैं जो मैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके पूरा करूँगा। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, इट मीन्स जहाँ भी महात्मा गांधी गए वहीं वहीं पीछे पीछे शुक्ला उनका पीछा करता रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद में जब आश्रम पे वापस आ गए गांधी जी, तो शुक्ला ने वहाँ पे भी उनको फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने कभी भी गांधी जी को अकेले नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनके साथ रहे, जहाँ भी वो जाते थे वहीं उनके साथ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दया से भीख मांगते हुए कहा, प्लीज़ एक डेट निकालिए, आप चंपारण चलिए, फिक्स आ डेट, दैट मीन्स एक डे है, कोई डेट है, आप फिक्स कर लीजिए, हाँ मैं आपको चंपारण ले चलूँगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड यू कैन से story, Gandhi said, I have to be in Kolkata on such and such a date, come and meet me, take me from there। अब वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी एक लास्ट मीटिंग है कोलकाता में, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर ऑनेस्टी एंड स्टोरी, सो यू हैव टू कम अपॉन देयर एंड मीट मी अपॉन देयर एंड जस्ट टेक मी देयर टू द चंपारण, राइट। मंथ पास्ट, बहुत सारे महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग इन द हाउसेस एट द अपॉइंटिंग स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी अराइव्ड। जहाँ गांधी जी पहुँचने वाले थे वहाँ पर कोलकाता में पहले से ही शुक्ला जो है वो अपने हॉन्चेस पे यानी कि पैरों के बल इस तरीके से बैठे हुए थे जैसे वो बहुत देर से किसी की जो वेट है वो कर रहे हैं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, वो तब तक वेट करते रहे तब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उनमें से दो व्यक्तियों ने जो वहाँ आए थे वहाँ पे पटना के लिए एक ट्रेन जो है वहाँ बोर्ड कर दी, टिकट खरीद ली गई। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर। अब वो दोनों चलते हैं जो दो कौन हैं, शुक्ला और महात्मा गांधी। तो वहाँ जाने के बाद वो एक लॉयर जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, यस ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, so who later became the president of the Congress party and of the India। So Rajendra Prasad was out of the town, but the servant knew Shukla as the poor yeoman who pestered their master to help the Indigo sharecroppers। But Rajendra Prasad भी उस poor you can say जानते थे शुक्ला को, क्योंकि वो एक ऐसा गरीब तबके का किसान है जो अपने लोगों की हेल्प के लिए शेयर क्रॉपर्स की हेल्प के लिए राजेंद्र प्रसाद के पास आया था। सो दे लेट्स हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। अब यहाँ उनको भी समझ नहीं आया था कि ये दूसरे वाला जो इंसान है वो कौन है। सो
वहाँ और कोई नहीं, तो एक्चुअली उनको राजेंद्र प्रसाद वहाँ मिलते ही नहीं हैं, और राजेंद्र प्रसाद नहीं मिलते तो उनका सर्वेंट जो है वो उसको पहचान नहीं पाते हैं महात्मा गांधी को, तो वो उसको भी एक पुअर पीजेंट ही मान लेते हैं। और पुअर पीजेंट मानने के बाद उनको ज़मीन पे बिठा देते हैं। वो उनको लगता है कि ये दोनों ही अनटचेबल यू कैन से एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो वो उनको कहता है कि डू नॉट गो फॉर द वेल, तुम कुएं के पास नहीं जाओगे, वहाँ से एक ड्रॉप पानी भी नहीं पियोगे। अगर तुमने ये उसमें एक ड्रॉप पानी भी डाल दी अपने हाथ से तो वो मलिन हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फॉर द मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू द चंपारण। पहले वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि उन्हें मुजफ्फरपुर जाना है जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है, टू ऑब्टेन मोर कॉम्प्लिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट शुक्ला वॉज कैपेबल टू इम्पार्टिंग। उन्हें वो इन्फॉर्मेशन जाननी थी जो शुक्ला पूरी तरह से उन्हें नहीं दे पाया था। ही अकॉर्डिंग सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। अब वो एक टेलीग्राम सेंड करते हैं प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, जो आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में ही प्रोफेसर थे, होम ही हैड सीन एट द टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। अब उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उनको देखा था। किन्होंने? महात्मा गांधी ने जे.बी. कृपलानी को कहाँ देखा था? टैगोर्स के शांति निकेतन स्कूल में। The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of the students. अब उनको उनका टेलीग्राम मिल गया था, तो दैट वाज द मिडनाइट ऑफ मध्य रात्रि थी 15 अप्रैल की 1917 में। कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब उनका स्टे कहाँ कराया गया? प्रोफेसर मलकानी के यहाँ। और अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में थे। अब वो उन्होंने बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया, सारी चीज़ें हुई। तो ये एक्सपीरियंस महात्मा गांधी के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था उन दिनों में, कि उस दिनों में रिवोल्यूशनरीज लोगों को, यानी कि जो बंदे क्रांतिकारी थे, उनको जगह पनाह नहीं दी जाती थी, स्पेशली एट द मोमेंट। सो because in smaller localities the Indians were afraid to show sympathy for the advocates of home rule। जो सब राज्य की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी लोगों को पनाह नहीं दी जाती थी, बट ये उसके लिए काफ़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस रहा। द न्यूज़ ऑफ द गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। अब जो गांधी जी थे उनके पहुंचने की खबर सारी जगह फैल गई थी, मुजफ्फरपुर में से लेकर चंपारण तक। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, वो वहाँ पर बेयर फुट भी आने लगे, जिसको जैसे कन्वे मिला वो वैसे आने लगे अपने चैंपियन को देखने के लिए। सो मुजफ्फरपुर के लॉयर भी बुलाए गए ताकि गांधी जी को पूरी ब्रीफ में हर एक चीज़ समझा दिए। तो वहाँ उन्होंने केस के बारे में बताया और अपने फीस के बारे में भी बताया। गांधी चाइल्ड द लॉयर्स फॉर द कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। वो कहते हैं कि इन लोगों ने, एक गरीब तबके के लोग हैं और आप लोग इतने हाई चार्जेस इनसे वसूल रहे हो, इतनी ज़्यादा फ़ी ले रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। अब वो कहता है कि अब हम लॉ कोर्ट्स नहीं जाएंगे, हम इन केसेस से कोर्ट में हमारा कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पिजन इतने दिनों से कस्ट हुए हैं, उनके उससे पहले उनका फियर भगाना ज़रूरी है, यानी कि उनका डर है वो भगाना ज़रूरी है। अदरवाइज कोर्ट्स क्या है? यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उनको उस डर से, उस भय से मुक्त करना जिस भय में वो अभी भी जी रहे हैं। Now, most of the arable land in the Champaran district were divided into large estate owned by Englishmen and worked by the Indian tenants। अब उनके सामने जो केसेस था वो बिल्कुल क्लियर था। वो कहते थे कि जितनी भी अरेबल लैंड है चंपारण की डिस्ट्रिक्ट की, वो डिवाइडेड इनटू, वो 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी या बांटी गई है। एक तो इंग्लिशमैन के द्वारा, जो जिस पे इंग्लिशमैन का हक है यानी कि ब्रिटिशर्स का, और दूसरा जिस पे काम करते हैं इंडियन टेनेंट्स, वो यू कैन से किराए के किसान, आप जिन्हें कह सकते हैं। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपज, जो पैसा देने वाली क्रॉप है, वो इंडिगो वहाँ उगाएंगे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, यानी कि फोर्स कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स उन इंडियन टेनेंट्स को कि वो अपने 15% लैंड पे क्या उगाए? इंडिगो। एंड और बाकी सरेंडर एंटायर द इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जितना भी इंडिगो वो उगाएंगे उसको एज अ रेंट उनको देना पड़ेगा ब्रिटिश कंपनी को।
सो दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, अदरवाइज उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट द जर्मनी हैज़ डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। अब जो केस है उसमें ये मोड़ आता है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं यानी ब्रिटिशर्स हैं, उनको पता चल जाता है कि जर्मनी में सिंथेटिक यानी कि जो रियल ना होकर सिर्फ एक ह्यूमन मेड इंडिगो डेवलप कर लिया गया है जर्मनी के द्वारा। दे अपॉन obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% of arrangement। तो अब वो उनको मिल गया है एक साधन, ऐसा साधन जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला था, दैट इज सिंथेटिक इंडिगो। अब उन्होंने पीजेंट्स को ये फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको आपकी 15% ज़मीन से रिलीज़ कर देंगे, आपको उसके लिए एक कंपनसेशन भरना होगा, एक ह्यूज अमाउंट रुपीज़ की भरनी होगी, तभी हम आपको रिलीज़ करेंगे। बट शेयर क्रॉपर्स जिनके पास पैसा था उन्होंने कुछ ने साइन कर दिया, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उन्हें पता ही नहीं था। बट कुछ ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था, तो वो महात्मा गांधी जैसे महात्माओं के पास गए और बहुत सारे बड़े लॉयर्स के पास गए ताकि केस जीत सकें। सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वर एन एक सम टू द पीजेंट। अब जो शेयर क्रॉपिंग थी अरेंजमेंट थी वो पीजेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, एंड बट उनको क्या था कि हाँ भाई जिनके पास पैसा है वो साइन कर रहे थे विलिंगली, दोज हु रेसिस्टेड जिनको पास नहीं था उन्होंने लॉयर हायर किए। सो द लॉर्ड लैंड जो यू कैन से रफ लोग्स थे यानी कि गुंडे थे, उन्होंने वो हायर करे ताकि ये ज़बरदस्ती से साइन करा सके। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैज साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब ये बात जो सिंथेटिक इंडिगो की थी, ये बात पहुंचती है उन लोगों तक जिन्होंने साइन कर दिए हैं। अब वो अपना पैसा वापस चाहते हैं, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। सो एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन द चंपारण। अब चंपारण में गांधी जी आ गए हैं। He began by trying to get the fact. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. So, वो इस फैक्ट पे यू कैन से अपनी सारी नॉलेज लगाते हैं। वो सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का एसोसिएशन है यानी कि ज़मीन के मालिकों का एक ग्रुप है यानी एसोसिएशन है उनकी, उसकी सेक्रेटरी से वो बात करने पहुंचते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे वुड हैव गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। वो सेक्रेटरी उनको आउटसाइडर बोलकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। गांधी जी उनको कहते हैं मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। तो नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक त्रिहुट डिवीज़न है जहाँ पर उसके कमिश्नर से वो बात करते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि जिस तरीके से मैंने उनसे बात बोली, बहुत पोलाइटली बात की, लेकिन मुझे कमिश्नर ने बुली किया, दैट मीन्स मुझे डराया और धमकाया और मुझे एडवाइस दी कि मुझे ट्री हट छोड़ देना चाहिए। गांधी डिड नॉट लीव, उन्होंने नहीं छोड़ा, इंस्टेड टू ही प्रोसीड टू मोतिहारी। उन्होंने चंपारण नहीं छोड़ा, साथ में वो मोतिहारी की तरफ प्रोसीड करके चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतिहारी क्या थी? चंपारण की कैपिटल। Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi and went to the house and you can say using it as a headquarter. So बहुत सारे जो lawyers थे वो उनके साथ थे। रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गांधी जी को ग्रीट किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए, यूजिंग इट एज द हेडक्वार्टर्स, कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन। अब वो वहाँ रहकर ही सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या घटित हो रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगा कि पास के ही गांव में पीजेंट्स को लूटा जा रहा है। सो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। सो द नेक्स्ट morning he started to go out on the back of the elephant. He had not proceeded far while the police pretended a messenger took over him and ordered him to return the down। अब जैसे ही वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलते, उसकी जगह तफ्तीश करने जाते, उससे पहले ही वो किसके द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं। वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधिकारी के द्वारा
कैप्चर कर लिए जाते हैं और उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपने टाउन लौट जाएं अपने कैरेज में। गांधी कंप्लाइड, अब वो इस बात से एग्री कर जाते हैं, ठीक है मैं लौट जाता हूँ। द मैसेंजर ड्रॉ गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब गांधी जी को वो जो मैसेंजर था वो अपनी जगह छोड़कर आता है, जो गांधी जी जहाँ स्टे कर रहे हैं, और उनको एक नोटिस भी दे देता है कि उनको चंपारण बहुत इमीडिएटली यानी कि अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। गांधी साइन कर देता है रिसिप्ट पे, और साथ में उनके साथ एक नोटिस भी लगा देते हैं, उस पर लिखते हैं कि दैट वो इस ऑर्डर को डिसोबे नहीं करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक सम्मन मिलता है कि उनको कोर्ट में पेश होना अगले दिन। उस दिन गांधी जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उन्होंने टेलीग्राफ लिखा राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार आए कुछ अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में उन्होंने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस थे वो सेंड कर दिए थे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के वाइसरॉय को भी एक फुल रिपोर्ट तैयार करके भेजी। सो मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। सो सुबह देखते हैं तो टाउन में पूरी तरह मोतिहारी के जो पीजेंट्स थे, गरीब के इंसान थे, वो किसान थे, वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। दे हैड मेरिली हर्ड अबाउट him and he knows that a महात्मा who wanted to help them with in trouble with the authorities। अब उनको सिर्फ इतना पता था कि एक महात्मा उनके दुख मिटाने आया है और वो अथॉरिटीज़ के हाथों दुखी हो रहा है। So the spontaneous demonstration in thousand around the court house was begin on the liberation from the fear of British। अब वो ब्रिटिशर्स के फियर्स की वजह से लगा लीजिए या फिर लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो इट सीम्स टू बी लाइक द फर्स्ट फ्रीडम टू लिबरेशन एट दैट टाइम। सो द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉरपोरेशन। जो ऑफिशियल थे वो बिना गांधी जी के कॉरपोरेशन के बिना पावरलेस थे, क्योंकि वहाँ के लोग गांधी जी को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सो ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। सो गांधी जी ने क्राउड को अच्छे से मैनेज किया। एंड ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बड़े पोलाइट फ्रेंडली तरीके से ही वॉज गिविंग देम concrete proof that he their mighty theater dreaded and unquestioned would be challenged by Indians। वो कहते हैं कि मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि अब हम बिना किसी यू कैन से दिक्कत के हम जो चैलेंज कर रहे हैं, हम जो फेस कर रहे हैं, हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। द गवर्नमेंट जो इस चीज़ को देख कर थी वो हैरान थी। द प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील था रिक्वेस्ट करता है जज से टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, की अथॉरिटीज़ को यहाँ की अथॉरिटीज़ को अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहिए। Gandhi protested against the delay. He read the statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties। गांधी जी ने प्रोटेस्ट का जो है वो मना कर दिया। सो ही डिड द स्टेटमेंट प्लीडिंगली गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व। अब उन्होंने कोर्ट को कहा कि हाँ मैं गिल्टी हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं इन्वॉल्व हूँ इस सब रेगुलर एक्टिविटीज़ में, कि मैं लोगों का कन्फ्लिक्ट को कन्फ्लिक्टली मतलब मैंने मैनेज किया है, ना कि उसको लॉफुल नहीं किया। ऑन द अदर हैंड नोट सेट एंड वेड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। और इस तरीके से मैं इन लोगों के सामने एक लॉ ब्रेकर के तौर पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सभी भी मेरी बात मानते हैं और वो भी इस तरीके की ही बिहेवियर करेंगे। सो आई हैव टू और he has just on the other hand to render the humanitarian national service for which he had come। वो कहते हैं मैं जिस नेशन की सर्विस, राष्ट्र की सर्विस के लिए, इंसानियत के लिए यहाँ आया हूँ, उसके लिए मैं इस कानून को हाथ में नहीं लूँगा। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। अब लेकिन जब उन्हें छोड़ने के लिए बोला गया तो उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया वहाँ से जाने के लिए। नॉट फॉर वांट फॉर रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। वो इसलिए नहीं कि वो कानून की अथॉरिटी की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे, बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर पे लॉ ऑफ बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। बट वो इन सबसे बड़े लॉ यानी कि इन सबसे बड़ा भी एक कानून है, वो उसकी सुन रहे थे। वो किसकी सुन रहे थे? दैट इज़ द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने अंतरात्मा की सुन रहे थे। ही आज द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने इवन पेनल्टी के लिए भी बात की।
The magistrate announced that he would pronounce सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसेस। वो कहता है कि मैं 2 घंटे के ब्रेक के बाद इस चीज़ का फैसला सुनाऊंगा। आज गांधी जी फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। गांधी जी रिफ्यूज्ड। अब उन्होंने 120 मिनट की बेल के लिए पैसे भरने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा किसको? महात्मा गांधी को। बट महात्मा गांधी रिफ्यूज्ड टू पे ऑल दिस बेल्स मनी बट एंड द जज रिलीज्ड हिम विदाउट एनी बेल। बिना पैसों की उन्हें बेल मिल गई। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. अब जब वापस कोर्ट लगा तो यहाँ फैसला हुआ कि जज अब बहुत दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. उन्होंने कहा कि आप आज़ादी से यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर prominent lawyers arrived from बिहार। अब बहुत सारे ऐसे राजेंद्र प्रसाद और उनके दोस्त बिहार आ गए। एंड दे कन्फर्म्ड विद गांधी व्हाट वुड दे डू इफ द सेंटेंस टू प्रिजन। वो कहता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए जब वो उन्हें जेल में डाल देंगे। गांधी आस्क्ड व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। वो कहते हैं क्यों डाल देंगे? दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प इन। इफ ही वेंट टू जेल देयर विल बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे विल गो होम। वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जेल में बंद हो गया तो उनको एडवाइस देने वाला नहीं हूँ, सारे घर चले जाएंगे और हमारा अभियान रुक जाएगा। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स गांधी डिमांड। तो वो कहते हैं कि फिर उनका क्या होगा, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर के साथ उनका क्या होगा। द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट। अब वो एक कंसल्ट के साथ रिजल्ट के साथ बाहर आते हैं। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. They thought almost themselves the Gandhiji was totally a stranger, and yet he was prepared to go to the prison for the sake of prison. If he, on the other hand, being not only resident by the adjoining district, but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. So we will do till there in the part first. After that, we will start our video from this very paragraph in the part 2. So meet in the next part, that is part 2. So stay tuned. We'll do it to the tomorrow.